Good morning, students. Last class we have discussed about the limitations of Bohr's model. I could not explain the Zeeman effect, Stark effect, as well as I could not explain the how the atoms are combining to form the molecule, and it also could not explain about which one well defined. Means it is not actually well defined, but according to Bohr's idea, the well defined circular path are there for the electrons, but actually concept of dual behavior that pointed out that path of motion of electrons cannot be well defined. That also we'll discuss. And Bohr's gave a flat model, whereas the electrons models are actually, atoms models are actually three-dimensional. So to sort out or overcome this problem, we are going towards which one? A quantum mechanical model. Okay, so Bohr's models is not coming with the successful because there are so many limitations are coming. So now what is quantum mechanical model here? Now that is actually the overcome the drawbacks of Bohr's model. There we have to follow the following concept. What is the new models are developed, and these phenomena are leading to the quantum mechanical model. So energies are quantized energies are there for the orbital that we have to find out. So now we are coming for the first incident. What is the dual behavior of matter? We learned about the electromagnetic radiation, dual behavior of electromagnetic radiation. Now we are coming to the matter here. So matter is also associated with both wave and particle nature like radiation. The diffraction pattern obtained when beam of electron is made to fall on nickel or aluminium crystal is similar to that of the X-rays. Means it is showing which one? Now matters are showing wave-like behavior. They are showing the diffraction pattern here, means bending out the wave. And photoelectric effect means when they are falling on the metals, they are actually ejecting the electron. So that is also actually showing by the matter again. How it is? Now when each photoelectron causes one flash on zinc sulfide screen showing particle nature of the electron. So here matters are showing both the wave as well as the particle nature. So what is the relationship? That is actually proved by de Broglie equation. Okay, so friends, physicist de Broglie 1924 proposed that matter like radiation should also exhibit the dual behavior, both particle and wave-like properties. This means that in case of the electromagnetic radiation, we have seen that photons has the momentum as well as the wavelength. So momentum is where it is the mass and velocity, and whereas wavelength is also, that is actually wave nature, and this is particle nature. Electron should also have the momentum as well as the wavelength. And what is the relationship? That was proved by de Broglie. So de Broglie relation states that wavelength associated with the moving object or an electron is inversely proportional to the momentum of the particle. Okay? So lambda, it is directly inversely proportional to which one here? The wavelength is inversely proportional to 1 by p. 1 by p means which one here? That is actually the momentum. So to make it equal, so that actually proportional constant of proportionality we are taking here as h. H means it is the Planck's constant. So lambda equals to h by mv or equals to h by b. So we can see that is the relationship between the wavelength and the momentum. So that means the wave nature and the particle nature. So this is actually de Broglie equation. There we have proved that their electrons are also showing both the dual behavior here, not only the electromagnetic radiation. So there we are starting about the quantized or quantum model of the atom there. So now it is coming about we are leading. First one is over, dual nature. So here some significance is there. Significance is what here? Now this equation is significant for macroscopic bodies only. This is because the wavelength associated with the ordinary objects are so short due to their large mass that their wave properties cannot be detected. No wavelength is there. So the wavelength associated with the electrons and other subatomic particles can be detected experimentally. ठीक है? तो कौन सा आप डिटेक्ट कर सकते हो ना? इलेक्ट्रॉन्स जितना माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, उसकी जो वेवलेंथ के साथ रिलेशन, किस रिलेशन है ना? मोमेंटम रिलेशन दैट यू कैन फाइंड आउट. एक एग्जाम्पल छोटा सा है आपके पास. If the velocity of the electron in Bohr's first orbit is 2.19 10 to the power 6 meter per second, calculate the de Broglie wavelength associated with it. ठीक है?
So what is given to us? Velocity is given to us, v is given to us, and what we have to find out? Lambda we have to find out. So look at there, the mass of electron already known to us, 9.11 10 to the power minus 31 kg. H is given already known to us, 6.626 10 to the power minus 34 joules second. Wavelength आपको find out करना है. So what is the formula to apply there? Lambda equals to h by mv, because we have to find out the wavelength by applying the velocity. This is a relationship between the wave nature and particle nature. ठीक है. So now by applying all these things we can get here 332 picometer. So in that way the numericals can come. So the microscopic object के लिए कोई आपके पास velocity दे के रखा है, आपको wavelength find out करना है. That's the relationship between the particle nature and the wave nature. So we can find out, or we can solve the problem by using this formula that is called de Broglie equation, and that is lambda equals to h by mv, जहाँ पे h है Planck's constant, इसकी वैल्यू है 6.626 10 to the power minus 34 joule second. Okay, so now we are coming for one more theory. One more, which one? The Heisenberg uncertainty principle. यहाँ पे दो चीज़ों के, that two things, two experiments actually leading to this quantum mechanical model. Means last final atomic model, their energy is quantized, and that's what is called quantum mechanical model. Energy is there, we can say the quantized here, the discrete unit is there. So in that condition, these two phenomenon, one is dual behavior of matter that is leading to the quantum mechanics. क्योंकि already बोर atomic postulate क्या हो गया ना, थोड़ा सा limitations आ गए, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें और एक मॉडिफाइड मॉडल चाहिए, और उसके लिए दो एक्सपेरिमेंट बहुत ही हेल्प किया. जस्ट वन है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, अदर इज Heisenberg uncertainty principle. Okay, so what is Heisenberg uncertainty principle? Now this principle is put forward by W. Heisenberg, a German physicist. According to this principle, it is impossible to determine simultaneously the exact position and the exact momentum. So what is given to us? एक exact position है, exact momentum, दोनों आप एक साथ accurately find out नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Uncertainty principle. बोर्स ऑलरेडी बोल के रखा था कि all are certain, all are with the fixed energy, fixed orbit, all these things are there, but यहाँ पे position और मोमेंटम एक साथ आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड Heisenberg uncertainty principle. दैट इज नॉट रिलेटिंग विद द बोर्स पोस्टुलेट. तो दैट्स व्हाई बोर्स पोस्टुलेट की लिमिटेशंस आ गए थे, और ये दो एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज लीडिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ओके, सो नाउ मैथमेटिकली हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे Heisenberg uncertainty principle को? डेल्टा एक्स मीन्स द पोजिशन, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजिशन. डेल्टा पी एक्स, दैट मीन्स इट इज द मोमेंटम, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h बाई 4 पाई. यहाँ पे h क्या होता है? वही है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है? दैट इज 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. अच्छा, डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, and h Planck's constant, and pi equals to 22/7, that is 3.142. So now by applying that one, instead of px we are applying there, it is a momentum, so that's why mass into velocity greater than equals to h by 4 pi. So by applying this we can get either uncertainty of position or uncertainty of velocity. Okay, so delta x into delta vx greater than equals to h by 4 pi m को हम लोगों ने इधर ले लिया, so h by 4 pi m, that is the final equation. Okay, so now we are coming, what is the conclusion here? If we know the position of the electron with high degree of accuracy, अगर आपके पास position की accuracy है तो then the uncertainty of the velocity of electron will be large and vice versa. अगर ये बहुत ही छोटा है, accurate है, तो ये बहुत लार्ज हो जाएगा, अनसर्टन हो जाएगा. तो दैट्स वाई दोनों आप एक साथ साइमल्टेनियसली आप मेजरमेंट नहीं कर सकते. अगर इसके हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है तो ये हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और ये अनसर्टेनिटी जो है इसका लार्ज हो जाएगा. ओके, एक एग्जांपल के साथ जब आप करेंगे तो उसके पहले दो चीज़ हम दिखा देते हैं. जैसे पहले एक एग्जांपल आपको बता देते हैं कैसे, क्या इसके एग्जांपल कैसे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं. Now a golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. देखो स्पीड की आपके देके रखा है, एक्यूरेसी 2% देके रखा है, और अनसर्टेनिटी इन पोजिशन आपको फाइंड आउट करना है. तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या है आपके पास ना, 2%, और इसके स्पीड क्या है 45 मीटर पर सेकेंड. तो 45 मीटर पर सेकेंड की
एक्यूरेसी नहीं आए, एक्यूरेसी कितना है 2% की है, तो डेफिनेटली हम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या लिखे 45 इंटू 2/100, जो 45 मीटर पर सेकंड में रनिंग हो रहा था उसी एक्यूरेट उसमें नहीं आ रहे, उसका 2% में जा रहे, तो उसकी 2% में एक्यूरेटी तो 0.9 मीटर पर सेकंड हो गई इसकी। अभी क्या हो गया ना, फ्रॉम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो अभी आपके पास तो वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी मालूम है, लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन के अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स डेल्टा एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी h/4πm, ये फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया और आपके अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट इज डेल्टा एक्स यू कैन गेट हियर 1.46 × 10⁻³ मीटर। सो यहाँ पे ये है प्रोसेस जिसमें हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे वेलोसिटी आपको गिवन रहेगा अनसर्टेनिटी, और आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को फाइंड आउट करना है, और अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन आपको गिवन रहेगा, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। दैट देन यू हैव टू अप्लाई हेजनबर्ग प्रिंसिपल, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू h/4πm। क्लियर। अभी इसकी सिग्निफिकेंस थोड़ा सा हम आपको मालूम करा देते हैं। तो डेफिनेटली व्हाई वी शुड प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज कमिंग द इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल सिग्निफिकेंट ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लिए हैं, तो हम थोड़ा सा इधर ये सेम चीज़ें है, बुक से ही आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है ये सिग्निफिकेंस हमको दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे एक हम लोगों ने लिए है कौन सा ना, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। देखो क्या लिखा है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लोगों ने लिया है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। कौन सा है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना, दैट इज एक्चुअली 9.11 10⁻³ kg, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक हो गया और ये मैक्रोस्कोपिक हो गया। इसका आपके मास क्या है 10⁻⁻6 kg, और इसका कितना है 10⁻31 kg के हिसाब से। तो ये हो गया मैक्रोस्कोपिक वन, ये हो गया माइक्रोस्कोपिक वन। तो मैक्रोस्कोपिक में आप वेलोसिटी देखो कितना आ रहा है 10⁻28, ये माइनस आएगा -28 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे आपके पास आगे डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। तो वेलोसिटी और मास की जो एप्लीकेशन 10⁻28 के हिसाब से आ रहे है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये बहुत ही छोटा किसके लिए आए, मैक्रोस्कोपिक के लिए, एकदम इनसिग्निफिकेंट हो गया। तो यहाँ पे लिखा है डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ऑप्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। अभी क्या है, जब हेवियर, ये हो गया आपकी हेवियर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जब आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए आप लोगों ने किया, तो वही सेम वैल्यू डेल्टा वी डेल्टा एक्स की वैल्यू आए 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। So if there means if one tries to find the exact location of the electron, suppose मान लो कि पोजीशन आपको गिवन दे के रखा है और वेलोसिटी यहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ ओनली 10⁻⁸ मीटर, ये पोजीशन आपको दे के रखा है ना। तो अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी क्या आ जाएगा देखो ना, यहाँ पे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स था, क्या था ना प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा वी डेल्टा एक्स। इसमें से आपको डेल्टा एक्स गिवन है, कितना गिवन है आपके पास डेल्टा एक्स ना 10⁻⁸ मीटर। तो आपके पास डेल्टा भी क्या आ जाएगा 10⁻+4 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल बात है, मतलब वाई इट इज़ सो लार्ज, 10⁻+4 मीन्स इट इज सो लार्ज फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन बोर्स ऑर्बिट। तो यहाँ पे इस कैन नॉट होल्ड गुड। तो ये दोनों कंडीशन से एक कंक्लूशन तो आए कि ठीक है एक्यूरेट पोजीशन भी नहीं है, एक्यूरेट वेलोसिटी भी नहीं है, तो बट यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक के लिए इतने ज़्यादा वेलोसिटी आए, और माइक्रोस्कोपिक तो छोड़ ही दिए हम लोगों ने, बहुत ही नेग्लिजिबल आए ये। लेकिन इस कंडीशन में देखें कि माइक्रोस्कोपिक लिए तो इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू आए, तो डेफिनेटली हम उसको एक्यूरेट नहीं बोल सकते हैं, बट यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी जो टर्म है हम इस यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। इन दोनों के कंक्लूशन में हम लोगों ने क्या है ना, देयरफॉर मीन्स दैट the precise statement of the position and momentum of electrons have to be replaced by the statements of probability। probability मतलब क्या है कि chance to find out, है ना, that the electron has at a given position and momentum। this is what happened in quantum mechanical model। तो ये हो गया आपकी लास्ट जो आए कि एक तो ड्यूअल बिहेवियर जिसमें ब्रोगली इक्वेशन आपने फाइंड आउट किया, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसमें लीड किया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इसमें आप एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं आपके हो सकते हैं, ना तो एग्जैक्ट आपके वेलोसिटी मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली हम उसको क्या बोलेंगे ना, कोई प्रिसाइज आप वैल्यू आप नहीं बोल सकते, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस टू फाइंड आउट ये चीज़ आप बोल सकते हो। इसको ही हम क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो लास्ट मॉडल हम
डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दी, कुछ न्यूमेरिकल्स है जिसमें वही डेल्टा वी डेल्टा एक्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स में। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स में हमारे पास क्या है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दैट इज़ अ थियोरेटिकल science that deals with the study of motion of the microscopic object that have both observable wave-like and particle-like properties. The basis of quantum mechanics that is Schrödinger है ना, Schrödinger equation इसको बोलते हैं। तो बेसिक ऑफ जो क्वांटम मैकेनिक्स उसकी बेसिक कौन सा है, Schrödinger equation। तो इसमें Schrödinger equation में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर ली ना, हम लोगों ने देखा फॉर अ सिस्टम, सपोज एक एटॉम भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एनर्जी डज नॉट चेंज विथ टाइम, द स्क्रोडिंजर इक्वेशन, क्योंकि एनर्जी देखो ये चीज़ अभी चेंज नहीं हो रही, एनर्जी अभी क्या हो जाए, क्वांटाइज्ड हो गया है ना, तो चेंज नहीं हो रहे। तो इसके लिए हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या फाइंड आउट करेंगे ना, हैमिल्टन ऑपरेटर दैट दिस इज एच इट इज़ कॉल्ड, तो इट इज़ कॉल्ड हैमिल्टन साई इक्वल्स टू ई साई। तो साई क्या होता है ना, वेव फंक्शन। साई हम किसको बोलेंगे ना, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, साई। जैसे कोई एटॉम, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सपोज जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो इस कंडीशन में ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसके थ्रू एटॉम की जो इलेक्ट्रॉन की अभी ओरिएंटेशन, हम इसको भी देखेंगे कि ओरिएंटेशन किस तरफ हो रहा है, वाई एक्सिस की तरफ हो रहे या एक्स एक्सिस की तरफ हो रहे, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द, दिस इज कॉल्ड द वेव फंक्शन एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई। दैट इज एक्चुअली नॉट गिविंग एनी पर्टिकुलर और कोई फिजिकल कोई वैल्यू नहीं देते हैं, but actually this phi is representing the wave function. So what is the formula here? Formula is h naught psi equals to e psi. That is actually coming the Hamilton operator. This is one wave function actually, and it is coming about the Hamilton operator. And next one is the total energy of the system, and wave function which is amplitude of the electron wave. Okay. So now the solution obtained by solving the Schrödinger wave equation for hydrogen atom indicates the possible energy state that an electron can occupy. अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, अभी एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है या जेड एक्सिस में है, कहाँ पे उसका पोजीशन है, दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट बाय दिस क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। सो नाउ दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन रिजल्ट इन क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट। मतलब एक पर्टिकुलर एक एनर्जी स्टेट अभी आ गए हैं जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब कोई अनसर्टेनिटी भी नहीं है और उसमें एक आपके क्वांटम नंबर के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कौन कौन सा क्वांटम नंबर है ना, मेनली तो 3 क्वांटम नंबर है, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक स्पिन क्वांटम नंबर है ना। तो द वेव फंक्शन साई इज अ मैथमेटिकल फंक्शन वैल्यू विच डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटॉम एंड इन हाइड्रोजन द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल है ना। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें रीजियन ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ रीजियन ऑफ अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कमिंग मूव। इसको ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। साई और साई स्क्वायर में डिफरेंस क्या है ना, द वेव फंक्शन साई इज एन एटॉम shows the atomic orbital of that electron. In each orbital, the energy of the electron is definite and an orbital can occupy a maximum 2 electrons. Or psi square at any point gives the intensity of the electron or probability of finding the electron at that point and therefore term as probability density. Psi square और psi में डिफरेंस ये है, psi मतलब ये वेव फंक्शन जिसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, और psi स्क्वायर मीन्स जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे सेंटर में क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ये लोब्स में इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड psi स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग अबाउट दिस क्वांटम मैकेनिक्स जिसमें 4 quantum numbers are there. One is principal quantum number that is represented by n, azimuthal quantum number that is represented by L, magnetic quantum number that is represented by Ml, and one more is there that is called magnetic spin number that is actually called Ms. So now look at there, here 4 conditions quantum numbers are there.
है ना, ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर. सो ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स वी हैव टू शो नाउ. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज़ द पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3. 1 2 3 के हिसाब से क्या हो जाएगा ना, इट इज़ के. अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, दैट इज एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटिंग द सेल, है ना. n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटिंग द शेल, SHELL. And then it is actually the we can say the orbit here, shell. And then 1 2 3 4 अगर इसकी इंटीजर नंबर आएगा तो इसकी डेजिग्नेशन क्या आएगा. अगर 1 है तो k, 2 है तो l, 3 है तो m एंड 4 है तो n. नेक्स्ट हम आ जाते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर. तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या हो जाएगा ना, दैट इज एक्चुअली ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर बोल सकते हैं. इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल. For a given value n, L can have n value ranging from 0 to n-1. मान लो n अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो ये साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है. साइज कैसा है, बड़ा है, या इसका एनर्जी क्या है वो रिप्रेजेंट करते हैं. और इसको 1 2 3 4 से हम रिप्रेजेंट करेंगे. अच्छा, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करेंगे ना, दे आर रिप्रेजेंटिंग द सबशेल. सबशेल मतलब क्या है, जैसे मान लो n इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू 1 में सबसेल क्या रहेगा, एक ही रहेगा, दैट इज 0, है ना. 0 मीन्स इट इज कमिंग अबाउट एक्चुअली इट इज 0 मीन्स s. सबसेल क्या रहेगा s. जैसे हम एग्जाम्पल के साथ बता देते हैं. सो एग्जाम्पल n इक्वल्स टू 1, तो n की वैल्यू जो आएगा l की वैल्यू भी वही आएगा, बट उसकी स्टार्टिंग होगा 0 से. जैसे n इक्वल्स टू का 3 हो तो l इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ना, l इक्वल्स टू आएगा 0 1 2, है ना. तो 0 1 2 तो 0 to n-1 इसकी रिप्रेजेंटेशन ये आएगा. अगर n की वैल्यू n अगर है तो इसकी l क्या आ जाएगा 0 to n-1. जैसे कि एग्जाम्पल के साथ हम बता देते हैं, अगर n इक्वल्स टू 3 तो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो 3. नंबर इज 3 बट इट इज l इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 1 2, मीन्स 0 to n-1. तो यहाँ पे n कितना है 3, तो 0 to 2, n-1 मतलब 3-1 2, तो 0 1 2 3 आएगा. ठीक है. इसके बाद इसकी डेजिग्नेशन क्या आ जाएगा, जैसे हम मान लो l इक्वल्स टू 0 1 2. ठीक है, तो 0 के लिए डेजिग्नेशन आ जाएगा सबसेल s, 1 के लिए क्या आ जाएगा p एंड 2 के लिए क्या आ जाएगा d. एज इट इज ये चलता रहेगा. n इक्वल अगर 4 हो जाए तो इसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर आ जाएगा क्या, l क्या आ जाएगा, वो 4 ही आएगा, लेकिन इसकी नंबर क्या आएगा 0 1 2 एंड 3. ठीक है, n-1 तक 0 to n-1. n-1 मतलब 3 तक आपको लेना है क्योंकि 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो 0 की डेजिग्नेशन आएगा s, ये सब सबसेल की मैं बता रही हूँ, s p, 2 के लिए आएगा d एंड 3 के लिए आएगा f. ये हो गया आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर. ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, इसकी सबशेल की कंडीशन, है ना. इसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट इज कमिंग अबाउट द, देखो यहाँ पे वैल्यू भी देके रखा है. अच्छा, नेक्स्ट इज कमिंग अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. अच्छा, दिस वन इज कमिंग अबाउट द नोडल सर्कल शेप. ओके, नेक्स्ट वन ईयर कमिंग. सो लुक एट देयर. अगर सबसेल नोटेशन आपको देके रखा है, n इक्वल्स टू 1 है तो l इक्वल्स टू 0 आएगा. सबसेल नोटेशन क्या आएगा 1s. n इक्वल्स टू का 2 है तो 0 1, देखो 2 दोनों है तो 0 1 2s 2p. 3 है, 3 के लिए 3 है, 0 1 2 3s 3p 3p. 4 4 4 4 और l भी 4 आएगा, 0 1 2 3 एंड 4s 4p 4d 4a. इसके बाद ml आ जाएगा. ml की वैल्यू क्या है ना, स्पेशल ओरिएंटेशन, मीन्स कौन सा एक्सिस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये रिप्रेजेंट कर रहे, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग बाय ml. तो ml का वैल्यू कैसा आएगा 12 + 1. देखो कैसे वैल्यू निकलेगा 12 + 1, इसके हिसाब से वैल्यू निकल जाएगा. और यहाँ पे देखो इसके आपको क्या फाइंड आउट करना है ना, आपको फाइंड आउट करना है इसकी ऑर्बिटल्स. सबसेल के अंडर में कितने ऑर्बिटल है, एस के अंडर में कितने ऑर्बिटल है, दैट वी कैन फाइंड आउट बाय व्हिच वन, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और ml. ठीक है, एक आपको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं इधर. जैसे यहाँ पे देखो
एस है। तो यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो आप मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट करोगे। इसकी आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? 12+1, ठीक है ना। तो अभी देखो ज़ीरो, जिस कंडीशन के लिए ज़ीरो आप मान रहे हो 0 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, एल की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस के लिए क्या आ जाएगा 2 × 0 + 1, दैट मीन्स इट इज़ कमिंग एक ही आएगा। एम एल क्या आ जाएगा, इसके लिए एस के लिए क्या ऑर्बिटल आएगा, एक ही ऑर्बिटल आएगा, ठीक है। अच्छा, पी के लिए क्या आ जाएगा ना, पी का वैल्यू 1 है, तो एम एल कितना आएगा ना, 2 × l + 1 मीन्स 2 × 1 + 1 दैट इज कमिंग 3। तो पी के लिए कितना ऑर्बिटल आएगा ना, 3 आएगा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, है ना। अगर हम ओरिएंटेशन की बता देते हैं, यहाँ पे ओरिएंटेशन मैं साइड बाई बता देती हूँ, तो ये हो गया आपकी, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी मैंने बोला कि स्पेशल 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे इसके अरेंजमेंट रहेगा, किसके अरेंजमेंट रहेगा, ऑर्बिटल की, है ना। ये है ऑर्बिटल, इसके अरेंजमेंट कैसे रहेगा ना, पी एक्स में भी हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स, दिस इज वाई एंड दैट वन इज जेड, अगर हम मान लेते हैं। और वाई के थ्रू भी हो सकते हैं, या जेड में भी ऑर्बिटल की एक्सटेंशन हो सकती है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल अरेंजमेंट। अर्थात स्पेस में कैसे अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो जाएगा इसमें। तो इट इज़ एक्चुअली शोइंग द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो पी में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, 3, है ना। डी के लिए क्या आ जाएगा, 2 × 2 + 1, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4 + 1 = 5। तो डी में कितना ऑर्बिटल रहेगा, डी सब शेल में कितना ऑर्बिटल रहेगा ना, 5। तो इधर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर और डी x² - y², ये हो गया 5 ऑर्बिटल। इसके ओरिएंटेशन में आपको दिखा देती हूँ कैसे आएगा ना, ये भी आएगा x y और z के हिसाब से, ये हो गया z, ये हो गया x, ये हो गया y। तो इसके हिसाब से आइदर ये रिप्रेजेंटेशन आएगा। कैसे रिप्रेजेंटेशन आएगा, क्योंकि ये बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे डी ऑर्बिटल की 4 लोब वाला शेप होता है, यहाँ पे 2 लोब वाला शेप होता है, किसकी, पी की। तो कहाँ पे ओरिएंटेशन होगा, dx² y² में आएगा, या dxy होगा, dyz होगा। तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर, 5, ठीक है। तो एम एल में आप क्या फाइंड आउट करोगे, एम एल में हम फाइंड आउट कर लेंगे कितने सबसेल के अंडर में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे जब n = 3, तो टोटल आपके ऑर्बिटल कितना रहेगा, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 1 3 5, सो 1 + 3 + 5, तो कितना हुआ 5 3 8 1 9। तो ये एक नॉर्मल फॉर्मूला ये है कि आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या है, n², ठीक है। तो n = 3, तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या रहेगा, n² मतलब 9। और ये आपको काउंट करके भी दिखा दिया मैंने, n² = 9, ठीक है। और एम एस क्या हो जाएगा, एम एस मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें क्या होता है ना, एक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा, और दोनों ही ऑपोजिट स्पिन में, एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो यहाँ पे भी तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा टोटल, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 ऑर्बिटल है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल है तो कितना रहेगा ना 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम एक अपवर्ड एरो और एक डाउनवर्ड एरो, इसके हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते, एक फर्स्ट को बोलते हैं प्लस हाफ और सेकंड को बोलते हैं माइनस हाफ। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे L = S, है ना। तो S में क्या रह जाएगा, एक ही ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे एक ही प्लस है माइनस हाफ रहेगा। और 3 यहाँ पे क्या होगा, P में कितना रहेगा, 3 आएगा, तो Px Py Pz, तो तीनों में क्या हो जाएगा, Px के लिए भी हो जाएगा प्लस हाफ माइनस हाफ, तो सब में प्लस हाफ माइनस हाफ आएगा, Py प्लस हाफ माइनस हाफ, ऐसे आएगा। एक आपको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा देते हैं, ये रहा, ऐसे कंडीशन में आपको जाएगा। जैसे L = यहाँ पे n = 2 है, तो 3 कंडीशन है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या आएगा, 0 - 1 0, है ना, -1 0 +1। एक चीज़ आपको रिप्रेजेंट करना मैंने भूल गई इधर, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ml की वैल्यू जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे px py pz, इसको मैंने बोला था 12 + 1 के हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 1, जैसे यहाँ पे 3 आए, 3 को कैसे डेजिग्नेशन कैसे दोगे आप, -1 0 +1, ठीक है, ये 3 हो गया। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या हो गया ना, 12 + 1 हो गया। इसके बाद आपके पास आ जाएगा, जैसे मान लो n = 4, तो n = 4 में कितना हो जाएगा, L यहाँ पे P के लिए हम ले लेते हैं, P के लिए D के लिए आप ले लेते हैं, D = क्या जाएगा, L की वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 × 2 + 1, तो कितना होगा 5। तो 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, -2
-1 0 +1 +2। तो ये हो गया आपकी 5 ऑर्बिटल की ये डिजिग्नेशन हो गया आपकी। तो इसके हिसाब से भी हम इसकी वैल्यू जिसको बोलते हैं, जैसे -2 के डी, जैसे -2 dxy, -1 dyz, 0 dz², ऐसे हिसाब से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखो यहाँ पे बोल के रखा है ये चीज़ इन 0 +1 -1 +2 -2। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा ना, -l मीन्स यहाँ पे आ जाएगा -1 0 -l2 +l तक ये रिप्रेजेंटेशन आएगा इसका, -l2 +l। जैसे l की वैल्यू 2 है तो इसलिए हम फाइंड आउट कर, l की वैल्यू क्या है 2 है d के लिए, तो -2 2 +2 ये हो गया रिप्रेजेंटेशन आपका। ठीक है, ओके।